Lisa, I think this is really, really profound what you're saying, because this has been the wish of, uh, the vision for education for so many centuries कि घर की तरह बच्चा स्कूल में सीखे, होम स्कूलिंग जिसे कहते हैं विदेश में भी, और बच्चा घर पे रह के हर चीज सीख ले। तो मेरे साथ काम करती हैं एक लेडी अमेरिका से, मेरी पियर्स, उनके हस्बैंड जेम्स पियर्स। तो उन्होंने अपने अमेरिका में रह के उन्होंने 9 बच्चों को होम स्कूलिंग करा। तो उनको सारे सब्जेक्ट्स आने पड़े और समझने पड़े, सारे लेवल्स पे समझना पड़ा, और बच्चों को उन्होंने मतलब हर तरह की ट्रेनिंग दी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं उन्होंने बच्चों को सिखाया कि घर कैसे बनाते हैं, और बात है घर बनाया फ्रॉम फाउंडेशन अप। कितनी स्किल्स बच्चों ने सीखी, गणित वहीं पे सीख ली, साइंस सीख ली, मटेरियल्स के बारे में सीख लिया, हर चीज उन्होंने सीख ली इन द प्रैक्टिकल लैबोरेटरी। बच्चों को मम्मी पापा को मदद क्यों नहीं करते? Why don't they help out? Because we have created these artificial walls between school time कि बच्चा 1 बजे तक स्कूल में रहेगा, 2 बजे तक, उसके बाद as you said that the child will go home and do homework and will have certain kind of a routine, and we've fallen so much hostage to the routine that we are forgetting the bigger equation, the bigger purpose of education. And I think now is a golden opportunity to practice with, to develop, to nurture a new kind of relationship with the parent, where the teacher is not just educating the child, in a way the teacher's facilitator for learning at home. The parents don't recognize the pain points of the teacher. That's also empathy building for the parents to understand all the things the teacher has to do, and so much patience the teacher has to show in order to teach a whole class. They find it difficult to teach their 1 child or 2 children or 4 children, and here the teachers have a whole classroom. So there are a lot of new possibilities when the teachers are educating not just the child, but sitting next to the child, as you have said, the parents as well. And we also can think from what you've said about, in a way, when we think of PTMs, parent-teacher meetings, we think of them as a rushed affair. Children come and sit down in front of the teacher says, this is what's good about your child, this is what you need to do further, and it's over in about 3 minutes or 4 minutes or 5 minutes, and this is twice a year, thrice a year. Now here you're getting a consolidated opportunity for many interactions with the parents, in which they can actually nurture a new relationship with the parent, develop more of a trust with the parent, and bring closer the family and the school, which has been such a necessary thing to build that trust between the teacher and the taught, and between the family. So I do want to say something on this, so please do proceed. Exactly. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे प्रिंसिपल से भी, और जो भी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेज अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेज आप पेरेंट्स के लिए भी स्टार्ट करें। वो वीकली हो सकती है, वीक में 1 or 2 डे हो सकती है, हाफ एन आवर की हो सकती है, मोर देन 300, 400, 500,000 पेरेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट कर। बहुत अच्छी चीज है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, आपको किसी ऑडिटोरियम में इकट्ठा नहीं होना है, किसी को घर से निकल करके नहीं आना है। तो पेरेंटिंग को लेकर के, और इस वर्कशॉप को करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल से कि सबसे पहले वो खुद पेरेंटिंग के बारे में अवेयर हो। व्हाट इज पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग क्या है, किस तरह की चीजें एक पेरेंट्स में होनी चाहिए, क्या हमें बच्चों को इनकलकेट करना है, क्योंकि पेरेंट्स अगर उसको सीखेंगे तो वो चीजें बच्चे भी उनके उस आचरण को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंटिंग को लेकर के, पेरेंट्स के रोल को लेकर के, पेरेंट्स की वर्कशॉप को भी स्कूल कंडक्ट करें। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो पेरेंट्स आपके एजुकेशन सेटअप में जो अभी तक बिल्कुल अलग है, हम कितने भी भाषण बड़े बड़े मंचों से दे दें और बड़े बड़े वेबिनार कर लें और किताबें लिख लें, लेकिन पेरेंट हमारे एजुकेशन सेटअप से ऑलमोस्ट गायब है। हम बड़े से बड़े स्कूल हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके बैठते हैं, और हम लॉजिक देते हैं कि हम पीटीएम में पेरेंट्स को ट्रेंड करते हैं। पीटीएम तो ज्यादातर क्या होता है, आप बच्चों को डिस्कस करते हैं, उनकी कॉपीज दिखाते हैं, कभी बच्चों की 2 प्रशंसा करते हैं, कभी 2 बुराई कर देते हैं। इससे ज्यादा पीटीएम नहीं हो पाती है। बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हम उनसे मंथली, वीकली, बाई मंथली बेसिस पे हम उनको मेल्स करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, हम पम्फलेट्स भेजते रहते हैं। बट इन चीजों के बावजूद एज ए प्रिंसिपल क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो निर्माण होना चाहिए वो हो रहा है? मैं जितने प्रिंसिपल से मैं इस प्रश्न को बार बार पूछता हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए हो रही?
अल्टीमेटली ये भाषण की चीज रह जाती है। वही 5 विषय हम रटाते और पढ़ाते हैं और सारे के सारे लाखों बच्चे IIT और इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस तैयारी में लग जाते हैं और अल्टीमेटली 10% सिलेक्ट होते हैं, 90% सड़क पे होते हैं और फिर वो मजदूर बनते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, फिर उनके पास 2 जून रोटी को खाने को नहीं होता है और हम मान करके चल रहे होते हैं कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, हम बहुत अच्छे तरीके से टीच कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को इसीलिए बात करता हूँ कि जो हम क्लासरूम टीचिंग दे रहे हैं, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही? आसान शब्द नहीं है मेरे लिए, कैसा कहना आसान है मुझे मालूम, बहुत कठिन चीज है, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन यही है। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे प्रिंसिपल्स, अगर हमारे टीचर्स इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं होंगे तो उनका रोल कैरेक्टर बिल्डिंग करना है और कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है, उसका सोशल, उसका इमोशनल, उसका मेंटल वेलबींग, उसकी कल्चरल, उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज, उसकी नॉलेज, उसकी स्किलिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स, एवरीथिंग उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में आती है। क्या कर पा रहे हैं? और ये सबसे अच्छा प्रश्न मैं बार बार ये चैलेंज करता हूं, हम सबके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, हमने क्या अपने बच्चों को डेवलप कर लिया? और अगर नहीं, अगर उसका कैरेक्टर हम नहीं बिल्ड कर पाए, अगर उसको देश के लिए हम नहीं खड़ा कर पाए, अगर उसकी पर्सनालिटी वो जो एजुकेशन के हम नहीं कर पाए, ये चैलेंज एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल हम सबको लेना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कि हम आज से शुरुआत करें। और उसका सबसे अच्छा समय ये है कि अभी तक पेरेंट्स आपको नहीं मिलते थे, पीटीएम भी आधे आते थे, आधे नहीं आते थे, और कई बार पीटीएम में आपकी टीचर से मिल करके निकल जाते थे और टीचर के पास लाइन लगी है तो कुछ लोग मिले और कुछ नहीं मिले। बट दिस इज द टाइम जब आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप अपने पेरेंट्स से टच में आ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों के, और जब आप पूरे ग्रुप में चर्चा करेंगे, देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बड़ा पुराना शब्द है, आप बात करेंगे तो मैसेज जाएगा। सिंगापुर ऐसे नहीं बना, 50 साल पहले, 60 साल पहले मछुआरों का देश होता था, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, लेकिन वहां के लोगों ने अवेयर किया, वहां के लोग जूझे, वहां के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, तो चीजें बढ़ना, दुनिया के सारे देश एक दिन में नहीं बन गए थे। यहाँ तक हमारा देश अभी जरूरत है, और इसलिए जरूरत है, सुनीता मैम अगर समय हो तो मैं डिस्कस करूं इस इशू को। बिल्कुल सर, प्लीज डिस्कस करिए। मैं बस आपको थोड़ा संक्षेप में अंग्रेजी में जो मेरे कुछ थॉट्स आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, आई कैन स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, बट ऑफ कोर्स यू आर प्रोफिशिएंट। मैं इस चीज को एक बार शेयर करना चाहूंगा कि इस समय हमारे देश की आबादी 130 CR है, 130 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है। हम सबको पता होना चाहिए कि 30% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 70 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, 70 years, एंड 40 करोड़ आबादी, कंट्री की 40 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हम सब समझते हैं कि 2 times का जो फूड है, 2 meals उनके पास नहीं है। 40 करोड़ आबादी हमारे देश की 2 time का मील नहीं ले पा रही है, और उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है। और जब मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं तो मैं इस बात को बड़ा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं कि हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके, अब IIT और इंजीनियरिंग कितनी सीट्स होती हैं, मेडिकल में कितनी सीट्स होती है, 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 20 लाख बच्चे JEE का एग्जाम देते हैं, फिर 45 to 50 लाख बच्चे ये 2 परीक्षाएं देते हैं और फाइनली लेस देन 1 लाख सेलेक्ट होते हैं, लेस देन 50,000 सेलेक्ट होते हैं। बाकी 49 लाख कहाँ जाते हैं? उसके बाद वो उन जगहों पे जाते हैं जहां उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। अगर हम इस चीज को प्लान करें कि हमें बचपन से बच्चे को टैप करना है, सुनीता गांधी जी आपके इस फोरम के माध्यम से मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि 1937 में, 1937 में वर्धा में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था उसमें बुनियादी शिक्षा का। बाद में CBSE के चेयरमैन भी बने थे और देश के टॉप मोस्ट पद तक गए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था बुनियादी शिक्षा का? वो कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे घर से निकलने वाले हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, शिल्प होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ बनाना, करना, सीखना आना चाहिए, जिससे जब वो स्कूल सेटअप से बाहर निकले तो वो रोजगार प्राप्त कर सके, अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। आज 2 तरह की चीजें दिखती हैं,
40 करोड़ तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके हाथ में स्किल्स नहीं है। आप इमेजिन करिए कि अगर स्कूल सेटअप में इन बच्चों को हम ट्रेंड कर ले गए, अगर बुनियादी शिक्षा और नई तालीम से इनको जोड़ ले गए, अगर इन बच्चों को हमने लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, स्किलिंग के थ्रू कुछ सिखा दिया। मैं इसलिए बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि 40 करोड़ जो मजदूर जीवन जी रहे हैं, जिनके हाथ में स्किल नहीं है, अगर उनको कुछ बनाना आना आता, अगर उनको कुछ क्राफ्ट करना आता, अगर वो स्किल्ड होते, अगर वो बुनियादी शिक्षा प्राप्त किए होते, नई तालीम प्राप्त किए होते, अगर कोई ना कोई चीज उनके अंदर क्षमता होती, तो मजदूर नहीं होते। तब उनको 2000 और 3000 रुपए महीने नहीं मिलता, तो 30,000 10 टाइम ज्यादा सैलरी अर्न कर रहे होते, अपने हाथ से काम कर रहे होते। तो दिस इज द टाइम जब हमें ये सोचना है, ये एकदम सही समय है जब हमें सोचना है कि देश के हर बच्चे को हमें बचपन में, जब हमारे प्राइमरी स्कूल से, नर्सरी स्कूल से, किंडरगार्टन से हम उन्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम उन्हें शिल्प क्यों नहीं सिखाते? हम लोग पढ़ते थे हमारे जमाने, हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं, हम उन्हें शिल्प नहीं सिखाते। So maybe because of the curriculum, you can say that the curriculum is responsible. The systemic change needs to take place. Paradigm shift without change at the top, at the level of policy. And सुनीता जी, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, या 2005 का जो एनसीएफ है, या उसके पहले 70s की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आती है। 86 की एजुकेशन पॉलिसी आपसे कहती है कि उसकी कौशल विकास करिए, उसकी स्किलिंग करिए, उसको डेवलप करिए। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे स्कूल्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स उस लेवल पे अवेयरनेस के साथ उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, चीजें जमीन तक नहीं पहुंचती। वो भी प्रॉब्लम थोड़ी और भी हो सकती है, वो ये है कि अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं करते हैं रिपोर्ट कार्ड में, तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो हमारे को अगर वाइडन करनी है, डीपन करनी है, ब्रॉडर करनी है, तो उसके लिए हमें कोई डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड, एंड रिजल्ट, जैसे आप आउटकम्स बेस्ड लर्निंग कहते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो प्रोसेस हो गया, लेकिन एंड में वो आउटकम्स आपको आने चाहिए। तो उन आउटकम्स में क्या ये चीजें मेंशन है, जैसे स्किल्स हैं, तो अगर होंगी और अगर एक रिपोर्ट कार्ड में वो दी जाएंगी, तो चांसेस है कि वो होगी चीज। अगर नहीं है, हम एकेडमिक्स में केवल टेस्टिंग कर रहे हैं, रिटन पेपर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इन चीजों पे एक्चुअली कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, कोई महत्ता नहीं दी जा रही। जैसे कि हम रीडिंग का कोई टेस्ट नहीं करते, रीडिंग पे जोर नहीं देते, तो लाइब्रेरी आज होने के बावजूद कोई रीडिंग नहीं हो रही है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। देखिए, दो चीज है, एक तो रिपोर्ट कार्ड में उन स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, और आई एग्री कि सबसे पहले तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा 1 साल क्लास में जा रहा है तो लर्निंग आउटकम क्या निकलना है। मैं बार बार लर्निंग आउटकम की बात कर रहा हूं कि हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तीनों को ये पता होना चाहिए कि वो जिस चैप्टर को पढ़ रहा है उससे आउटकम क्या निकलना है। लाइक अगर वो इंग्लिश लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहा है और उसमें पोएम्स पढ़ रहा है, पोएट्री पढ़ रहा है, या किसी टॉपिक को लेकर कह रहा है, तो उसका लर्निंग आउटकम इन तीनों को पता होना चाहिए कि उससे आउटकम क्या निकलना है। उस पोएम को पढ़ करके क्या उसके अंदर वैसी पोएम लिखने की क्रिएटिविटी आई, क्या सेंसिटिविटी आई, क्या कम्युनिकेशन स्किल आई, क्या अपनी बात को प्रेजेंट करने की उसकी स्किल डेवलप हुई, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग आई, क्या उसने उस पोएम को नेचर से रिलेट किया। दीज आर द आउटकम्स। और मैं आपके इस फोरम के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक अच्छा प्रयास एनसीईआरटी ने किया है, और 1 to 10 तक लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने जारी कर दिया है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं जरूर कहूंगा, होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमारी पढ़ने की आदत नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, और हम अपने स्कूल में आते हैं और जितना मेरा पुराना अनुभव होता है उसके माध्यम से हम टीच करते हैं, और एज ए प्रिंसिपल स्कूल को रन करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। लेकिन रोज दुनिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई है एजुकेशन, बहुत ही। जी पेरेंट्स केवल कहते हैं एग्जाम पास करने के लिए जो चलेगा वही आप पढ़ो, और यही नहीं कि आप हाई स्कूल में ये सब करो, 10th और 12th में, बट ये बचपन से प्री प्राइमरी से शुरू कर दो 10th की तैयारी। जी, तो मैं फिर सुनीता जी कहूंगा, आपने जो प्रश्न कहा कि रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए, टीचर का रिपोर्ट कार्ड एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ तय करती है, और एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ में बहुत साफ साफ कहा गया है कि हमें लर्निंग आउटकम कैसे चेक करना है। मैं आपके प्रिंसिपल्स के माध्यम से और टीचर्स के ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जो लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने दिया उसका प्रिंट आउट टीचर के सामने रखिए,
टीचर जो बुक है उसके उस लर्निंग आउटकम को उसके बुक में आप प्रिंट कराइए, और टीचर जब अपनी क्लासरूम में जा रही है तो एज ए प्रिंसिपल आप पेडागोजिकल लीडर के रूप में मॉनिटर करिए कि वेदर 40 मिनट्स में लर्निंग आउटकम निकल रहा है कि नहीं। जब तक पैशनेट होकर के आप लर्निंग आउटकम के पीछे नहीं पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के पीछे नहीं पढ़ेंगे, आपके 5 बुक्स सिर्फ सब्जेक्ट होकर रह जाएंगे, और फिर वही रोट लर्निंग जो चली आ रही वही आगे बढ़ेगी। और आपने जो मूल प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज की बात हो रही है, और उसमें ये बहुत जोर देकर के कहा जा रहा है कि हमें आउटकम बेस्ड लर्निंग करनी है। हम लिटरेसी से बहुत आगे निकल गए। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 40% आधी आबादी हमारी अशिक्षित थी, अब हम ऑलमोस्ट 100% को टच कर चुके हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम पीछे चले गए। दिस इज द टाइम जब हमें आउटकम बेस्ड लर्निंग करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करनी है, स्किल बेस्ड लर्निंग करनी है, और इसका सबसे अच्छा समय यही है जब हम घर में हैं, और क्यों ना हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू इन चीजों को टच करने का प्रयास करें। So do you think that the instrument of the NCF and the new education policy is enough to bring about change? For example, equality of women is a right, but is it given in real life? Similarly, a lot of great lofty ideals are there in the NCF 2005 and now in the new education policy. So what are the triggers? What are the real triggers to change? मतलब होगी कैसे, परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग जैसे स्कूल खुल जाएंगे शायद हम लोग वापस उसी पे चले जाएंगे जैसे पहले थे। तो उसको परिवर्तन में लाने के लिए और क्या चीजें करनी होगी? एक तो ऑफ कोर्स पॉलिसी का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो विजन देता है, वो डायरेक्शन देता है, लेकिन क्या बोर्ड्स बदलेंगे अपने तरीके, तौर तरीके, जिस चीजों को एग्जामिन करेंगे, जिन चीजों को देखेंगे, जिसको महत्ता देंगे, क्योंकि वही चीजें हम लोग करेंगे। ये एक रियल चीज है कि पेरेंट्स भी कहेंगे बेटा इसी से तुम्हें एडमिशन मिलेगा अगले लेवल पे, तो यही करो, बाकी सब छोड़ो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं और किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक बार पढ़ लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट एजेंडा है, नेट पर अवेलेबल है, उसको एक बार देखें जरूर। आप जब उसको देखेंगे तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहां से लेकर के, और एजुकेशन पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप बात करती है। एजुकेशन पॉलिसी अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करती है, एजुकेशन पॉलिसी नर्सरिंग की बात करती है, टीचर्स अपग्रेडेशन की बात करती है, इवन बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन कैसे लेके आए, स्किलिंग कैसे करें, इनकी बात करती है, उसका तरीका भी बताती है। देखिए, सरकार पॉलिसी देती है, इम्प्लीमेंट तो हमें करना है। तो मैं फिर कहूंगा कि सबसे पहले तो हम एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको पढ़ें। मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आपकी सबकी आवाज में नहीं सुन सकता हूं, लेकिन उत्तर आप ईमानदारी से खुद को दीजिएगा, इस सेमिनार में ज्वाइन किए हुए कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़ा है? इसका उत्तर मुझे तो नहीं मिल रहा है। आई थिंक इसका एक समरी डॉक्यूमेंट है 40 पेज का जो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत लंबा है। मैं गांधी मैडम रोकूंगा आपको। आप उम्मीद करती हैं कि क्लास 10th के बच्चे के एसएसटी के 23 चैप्टर्स बच्चे पढ़ लें? एसएसटी के 23 चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा करके आप टेस्टिंग करती हैं? गिनिए ना कितने पेज हैं? मोर देन 200 पेजेस बनते हैं। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाउ यू आर सेइंग कि आपको 40 पेज दे दिया जाए। नो, आई डू नॉट एग्री। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी चाहिए। गीता है, ये डॉक्यूमेंट है, हमें एनसीएफ पढ़ना चाहिए। जब हम ज्ञान ही हमारे पास नहीं होगा, हमें पता ही नहीं हो। देखिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग के लिए टीचर को पता होना चाहिए कुछ चैप्टर में आउटकम क्या निकलना है। जब आपका टीचर आउटकम नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर मॉन्टेसरी मेथड नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर किंडरगार्टन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर गिजू भाई की एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर नई तालीम बुनियादी शिक्षा नहीं पढ़ेगा, जब आपका टीचर, तो फिर रूट लर्निंग तो लेकर के आएगा। टू एक्सपेक्ट। तो मैं फिर इस फोरम के माध्यम से पहला निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो जो हमारी एनसीएफ है, पुराना और नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट एक बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों से कन्विंस होंगे और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, बहुत सही प्रश्न गांधी मैडम आपने किया और आपने इस चीज को पूछा है कि हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करें। ऐसा ना हो कि स्कूल खुले और फिर हम चले जाएं। क्या एजुकेशन बोर्ड अपने को चेंज कर रहे हैं?
क्या एज ए सीबीएसई हम असेसमेंट पैटर्न चेंज कर रहे हैं? क्या जो हमारी एकेडमिक्स है उनमें कोई चेंजेस लाने जा रहे हैं? क्या एफिलिएशन देने का तरीका हम बदल रहे हैं या नहीं? क्या, ये बहुत अच्छा प्रश्न, और आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार जो बच्चे बोर्ड एग्जाम, फॉर्चुनेटली सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे सके, कुछ पेपर उनके रह गए। अगर बोर्ड एग्जाम में देखें, हम लोगों ने 20% इंटरनल असेसमेंट डाला, आप स्कूलों के ऊपर छोड़ा, क्योंकि आप 365 डेज उनके साथ हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप 20-20% का मार्क्स जो बच्चों को देंगे वो उनका एक्चुअल असेसमेंट करके देंगे, जो इंटरनल असेसमेंट है जो आपके पास है। ये एक नया परिवर्तन है, पहले कभी आपने नहीं देखा था। 20% इन ऑल सब्जेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट है, एक पैराडाइम शिफ्ट है ये। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बच्चे जो एग्जाम्स देते थे उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर कंपलसरी होते थे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। हमने 35% इंटरनल ऑप्शंस डाले बच्चों के, आइदर ए और बी। ये एक चेंज है बच्चों के लिए। तीसरी चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लेकर के क्वेश्चंस इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10% है। हमारा टारगेट है कि 2023 तक 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के क्वेश्चंस हम लेकर के आए, जिन क्वेश्चन को रट करके नहीं, सोच करके, एनालाइज करके, सिंथेसिस करके, क्रिएट करके बच्चे उसका उत्तर, ये शिफ्ट होने वाला है। डिमांड बहुत सारे स्कूलों से आ रही है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी थोड़े समय लेकर के आने चाहिए बच्चों के लिए। डिमांड ये भी आ रही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोविड के समय में आपको करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके आगे आना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा सिस्टम होगा जो इस चीज को चेंज कर सकता है। तो ये जो पॉलिसी बहुत करीने से इन चीजों पर प्रकाश डालती है कि हम रोट लर्निंग से कैसे पैराडाइम शिफ्ट करें और बच्चे की कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को कैसे लेकर के आए। वो एजुकेशन पॉलिसी में, और एज ए सीबीएसई बोर्ड आप देखेंगी लास्ट ईयर कुछ आपको मिला, उससे पहले कुछ आपको मिला, और इस वर्ष अगर हमको मौका मिलेगा, जो कि हम उम्मीद करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे जिसमें आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि अगर आप अपने प्रश्नों को बदलेंगे तो हम पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे। जरूरत दोनों को है। एज ए बोर्ड हमें अपने प्रश्नों को पूछने का तरीका, असेसमेंट का तरीका बदलना चाहिए, और एज ए टीचर आपको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। दोनों जब टॉप पे पहुंचेंगे तो एजुकेशन ऑटोमेटिकली एक सही दिशा में निकलेगी। सर बहुत सारा रिसर्च है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च, जिसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड रेजिम फॉर गुड आउटकम, लेकिन जो रिसर्च ऑल्सो दिखा रही है कि व्हाट वी मेजर इज व्हाट वी गेट। अगर हम इस चीज को मेजर नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगी हमें, मतलब जनरली स्पीकिंग टीचर्स विल नॉट डू इट। तो इसके बारे में थोड़ा और आपको प्लीज हमें बताना पड़ेगा, टीचर्स कैसे करें, चीजें नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, 10% जोर उस पर आएगा, तो क्या वो रिपोर्ट कार्ड में आएगा? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किताब लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। इट सीम्स लाइक कि जो पब्लिशर्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं इंडिया की रियल एजुकेशन, क्योंकि वो किताबें बना के दे देते हैं और उन किताबों को हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अब वो किताबें कितना रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक पॉलिसी, वो एक डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। लेकिन नेवरदलेस वी बिगिन विद द बुक, देन वी डिजाइन की कौन सी चैप्टर्स पढ़ाने हैं उस बुक के, तो वो सिलेबस बन जाता है, फिर वो टाइम टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसी पे हम टेस्ट रिजल्ट देते हैं और उसी पे हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। जबकि हमें बिल्कुल उल्टा चलना चाहिए। आइडली भी रिपोर्ट कार्ड क्या चाहिए, बच्चे को बनाना क्या है, उसके भविष्य से जुड़े हुए क्या क्या चीजें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसकी, जैसे आपने कहा सोशल इमोशनल मेंटल वेलबींग है, उसकी at the mundane level also, and a deeper level also. There are so many requirements of development of a child in terms of life skills, core fundamental skills, also along with the competency based, outcomes based learning. तो वो सारी चीजें अगर हम रिपोर्ट कार्ड पहले डिजाइन करें, उसके बाद फिर हम आए असेसमेंट पे कि उस चीजों को हम असेस कैसे करें, क्योंकि टीचर वही करेगी जो असेस करेगी, उसी को पढ़ाएगी। फिर पढ़ाएं क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए पढ़ाई का, और फिर उसके हिसाब से फिर बुक्स एंड सिलेबस वगैरह डिजाइन। तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, मैं इस चीज से सहमत हूं कि रिपोर्ट कार्ड में अगर चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम क्वांटिफाई कर सकेंगे, अगर हम उनको दे सकेंगे, तो पेरेंट और स्टूडेंट्स को मालूम रहेगा कि उसके अंदर क्या डेवलप हुआ। रिपोर्ट कार्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आप रिपोर्ट कार्ड को बदल सकते हैं। 1 to 9 and 11 स्कूलों के हाथ में होता है। ओनली 10th and 12th हम बोर्ड एग्जाम्स लेते हैं,
और बोर्ड एग्जाम्स ज्यादातर चीजें हम उसकी नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड को भी अपने को बदलने की जरूरत है, और हम लगातार अपने को बदल रहे हैं, प्रोग्रेसिव बोर्ड की तरह कर रहे हैं। बट 1 to 9 and 11 स्कूलों के हाथ में बच्चे होते हैं और उनके पास ऑलमोस्ट एलेबोरेटिव रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें इन चीजों को डेवलप कर लेते हैं। मैं इसे फुली एग्री करता हूँ, और रिपोर्ट कार्ड में वो चीजें होनी चाहिए जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। लाइक अगर हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और कॉम्पिटेंसीज डेवलप कैसे हो रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, लिटरेचर की टीचर अगर क्लास में एक पोएम पढ़ा रही है तो पोएम पढ़ा करके क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, पोएम पढ़ा करके क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। अगर आप मुझसे पूछिए तो उस पोएम को पढ़ा करके पहली कॉम्पिटेंसी ये होती है कि बच्चा वैसे ही एक पोएम लिख सकता है या नहीं। अगर वैसी पोएम लिखने की कॉम्पिटेंसी आई तो एक डेवलप। दूसरा, पोएम को वो अच्छे से सुना सकता है या नहीं, जो उसकी लय होती, जो उसकी स्टाइल होती, उसमें पब्लिक स्पीकिंग की डेवलप हुई। तीसरा, जो पोएम है उस पोएम को वो किसी स्टोरी से रिलेट कर सकता है, नेचर से रिलेट कर सकता है, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है, आर्ट से रिलेट कर सकता है कि नहीं। ये तीसरी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई। चौथी चीज, इसके थ्रू बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, डिस्कवरी आती है। ऐसे ही आप मैथ उठा लीजिए या ऐसे आप साइंस उठा लीजिए, एसएसटी उठा लीजिए, तो हर चैप्टर, हर बुक किसी ना किसी कॉम्पिटेंसी की डिमांड करती है, और ये क्या कॉम्पिटेंसी है ये लर्निंग आउटकम्स में दिखाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से मैं रिपीट बार बार करूंगा क्योंकि इसको मैक्सिमम टीचर नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। मैं जब फेस टू फेस प्रिंसिपल से मीटिंग रहती है मेरी, बहुत सारे प्रिंसिपल भी इस चीजों को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। आपकी लिटरेचर में 15 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में सपोज करिए 10 चैप्टर्स हैं, साइंस केमिस्ट्री में सपोज करिए 15 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में उसका क्या आउटकम है, क्या कॉम्पिटेंसी उसमें डेवलप होनी है, ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी ने जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया उसमें लिख करके दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार टीचर और प्रिंसिपल उसको देखें, क्लास में जाने के पहले वो फील करें कि जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ 100 में 100 नंबर लेना है, या कोई कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, कोई स्किल डेवलप करनी है, उसका कोई आउटकम लेना है। करना किसको है? टीचर को। किसको करना है? पेरेंट को। कराना किसको है? प्रिंसिपल को। हम पॉलिसी दे सकते हैं, हमने पॉलिसी दे दी, हम आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को पैरामीटर को चेक करने के लिए एक ग्राफ दे सकते हैं, एनसीईआरटी ने आपको दे दिया। अल्टरनेटिव कैलेंडर जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ने अभी अल्टरनेटिव कैलेंडर आपके सामने दे दिया, और उसमें चीजें हैं। तो ये चीजें, लेकिन इम्प्लीमेंट तो प्रिंसिपल और टीचर को एज ए टीम करना। बहुत सारे प्रिंसिपल और टीचर्स दुनिया चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 1000 स्कूल्स जो इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जरूरत एक टीम में इसको इम्प्लीमेंट करने की है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लेकर के है, स्किलिंग को लेकर के है। बच्चे जब निकले, लेकिन इसको कराने की जिम्मेदारी तो हमारे टीचर और प्रिंसिपल्स की है, और हम छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। इसलिए हम लोग जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, अब आपको एक सूचना मैं आज देना चाहूंगा जो कि कुछ दिनों बाद आएगा। स्कूल अपना सेल्फ डिस्क्लोजर रिपोर्ट देते हैं, स्कूल अपना ओएसिस का फॉर्म भरते हैं, स्कूल अपना एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं। आप हमारे एफिलिएशन के तरीकों को एक बार चेक करिए। चूंकि आप पुराने स्कूल हैं तो आपको अंतर अभी दिखा नहीं है, लेकिन आप एक्सटेंशन के फॉर्मेट को चेक करें, एफिलिएशन के फॉर्मेट को चेक करें। हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते थे, बिल्डिंग चेक करते थे, कमरे चेक करते थे, बुक्स गिनते थे, उनको पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया किस पे? एकेडमिक ओरिएंटेशन पे। अब क्या नुकसान क्या है? हमने एक फॉर्मेट बनाया 50 पेज का, हमारे 2 इंस्पेक्टर्स आपके स्कूल को चेक करने के, उनकी ड्यूटी है कि 50, 20, 80 पेज के उस फॉर्मेट को रीड करें, समझें, स्कूल में 2 दिन बैठें और चेक करें कि वेदर स्कूल वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, डिलीवरी कर रहा है कि नहीं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। एज ए स्कूल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप सेल्फ डिस्क्लोजर भर रहे हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जो आप टिक करते जा रहे हैं, यस यस एक्चुअली आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें ब्लेंडेड अप्रोच है, तो लेके चलना पड़ेगा। बट हम होपफुल इसलिए हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी इनको टच करती है, और ये चीजों को लेकर के दुनिया और हमारा जो देश है अवेयर हो रहा है।
और कुछ ही दिनों बाद आपके सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर के सीबीएसई आएगी, आपके हाथ में जाएंगे, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि उसको एक दिशा मिलेगी। हम अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हम आपके लिए हैंड होल्ड करने के लिए डेवलप करें, जिसमें आपको हाथ पकड़ करके हम सिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से चलिए तो स्कूल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को अचीव करेगा, स्किलिंग को अचीव करेगा, और जो देश की स्थिति हो चेंज आएगी।